Good afternoon, students. In today's lecture, we'll be solving the numericals of on the topic BOD, and the numericals concept will be basically the concepts which we have studied in the previous lecture, right? So basically previous lecture में हमने दो important formula पढ़े थे. Let's revise. जो आपके दो important formula थे उसमें आपका था पहला formula to how to find the amount of organic matter left out in a sewage sample after t days. So that will be LT equals to L naught into 10 to the power minus KD into T, right? And then if we have to determine the BOD for any t days, right? So that would be YT equals to L naught 1 minus 10 to the power minus KDT. This can be L naught or L, same, right? L मतलब जितना आपका organic matter initially सीवेज में present है. Then there was one more formula, that was used to determine the value of deoxygenation constant at any other temperature. So KD at any other T degree Celsius is equals to KD at 20 degree, जितना 20 degree पे आपका into 1.047 to the power T minus 20. So basically these three main important formulas were there, and today we will be solving a numerical based on these concepts. So let's start. So the question is like this: the 5 days BOD, 5 days 30 degrees Celsius BOD of a sewage sample is 110 milligram per liter. Calculate its 5 days BOD at 20 degrees Celsius. Assume deoxygenation constant KD at 20 degrees Celsius as 0.1 per day. So first of all, let us understand what is being given in the question and what has been asked in the question. So the data given to you is the 5 days BOD of a sewage sample, but that is given at the temperature of 30 degrees Celsius, right? So its value is 110 milligram per liter. So we can write down here as BOD 5. BOD, the 5 days BOD can be written in short like this: BOD base में 5, BOD 5 at 30 degrees Celsius is equals to 110 milligram per liter. Right? Then it is asking you to calculate its 5 days BOD at 20 degrees Celsius. So what is being asked? BOD 5 at 20 degrees Celsius equals to, that is being asked, right? And assume deoxygenation constant KD at 20 degrees Celsius as 0.1 per day. So one more data is given to us, that KD, we can write this in bracket, that KD at 20 degrees Celsius equals to 0.1 per day, right? So this data is given and you have to find out this. So let's revise, students. I have told you that in a sewage sample, the ultimate BOD, that would be a constant value, right? But the BOD of any particular day, that would be a different value if the test is conducted at different temperature. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि BOD 5 जब उसने 30 डिग्री पे दिया तो 110 है, and he is asking you to calculate BOD 5 at 20 डिग्री सेल्सियस. तो इससे भी आपको पता लग सकता है कि जो BOD of any other day है, whether it 5 days, whether it is a 4 days, ये एक different value होगी अगर आपका टेस्ट different temperature पे conduct हुआ है. Whereas जो BOD ultimate होगी, that will always be a constant value, right? तो वो एक आपकी constant value होगी. तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले देखो BOD गिवन है. BOD का फॉर्मूला क्या होता है? वी कैन राइट इट एज y5 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 5 डेज की BOD गिवन है. y5 इक्वल्स टू L into 1 minus 10 to the power minus KD into T, right? This is the formula for calculating BOD, right? अब आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखना है कि जब भी आपको किसी पर्टिकुलर डे की BOD गिवन है तो आप इस फॉर्मूला के थ्रू उससे L कैलकुलेट कर ले, राइट? L क्या होता है हमारा? इनिशियल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सीवेज. और इसी को हम इक्वल टू किसके कहते हैं? अल्टीमेट BOD भी इसे इक्वल होती है, राइट? अल्टीमेट जो BOD होती है वो L के इक्वल ही आती है, इसीलिए कांस्टेंट वैल्यू है. तो क्योंकि आपको पता है कि जो L है वो इनिशियल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सीवेज है, तो टेस्ट आप किसी भी टेम्परेचर पर कंडक्ट करोगे, ये जो L की वैल्यू होगी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी. तो इसीलिए जो हमें डेटा गिवन है पहले उससे हम L को कैलकुलेट करेंगे और फिर जो हमें निकालना है उसमें हम इस L की वैल्यू पुट करेंगे, बिकॉज L विल ऑलवेज बी अ कांस्टेंट क्वांटिटी फॉर अ पर्टिकुलर सीवेज सैंपल, वेदर द टेस्ट इज कंडक्टेड एट 30 degree or whether test is conducted at 20 degree Celsius, the value of L will be same for that sewage sample. तो इसी तरीके से हम Y5 की वैल्यू यहाँ पे, क्योंकि हमें 110 मिलीग्राम पर लीटर गिवन है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे ये पुट करके हम बाकी सारी वैल्यूज पुट करके L को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो जैसे हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, सपोज
110 equals to L is unknown, 1 minus 10 to the power minus now KD into T. तो यहाँ पे जो आपका T है that would be कितने दिन की BOD है 5 days की, तो T would be of 5. Now the question is what will be the value of KD? So students, you have to be very careful that while doing questions, lot of students do this mistake that they put the value of KD as 0.1 as it is given in the question. But you have to keep this in mind that the value given in the question is mentioned at the temperature 20 degrees Celsius. While the value which is given 110 milligram per liter, it is given for the temperature 30 degree Celsius. So as I have told you in the previous lecture कि इस formula में जब भी आप whenever you will put the value, you have to keep two things in mind that जो T होगा वो उतने जितने दिन की BOD given है उसी को रखेंगे. Suppose यहाँ पे BOD 5 given थी तो T would be put as 5 and KD will always be put for that temperature at which the test is conducted. So you as you can see here that जो 110 milligram per liter में value given है that is for 30 degree Celsius and the test and the value which KD value which is given that is mentioned at 20 degrees Celsius. So that means you have to put the value of KD corresponding to the temperature 30 degrees Celsius. So now as it is not given in the question, so we have to calculate the value of KD. So how do we calculate the value of KD at any other temperature? So the formula for that is KD at 30 degrees Celsius equals to KD at 20 degree, right, into 1.047 to the power T minus 20, right. तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है KD निकालने का. तो हम KD at 30 डिग्री निकाल लेंगे. इससे हमारा KD at 20 कितना है 0.1 गिवन है, राइट, इंटू 1.047 टू द पावर T. T कितना है 30 डिग्री क्योंकि हमें 30 पे निकालना है KD. 30 minus 20. तो व्हेन वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन तो इससे हमारा जो KD है दैट वुड कम एज 0.158. So you can see the value of KD at 20 degrees 0.1 and at 30 degrees it is 0.158. तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है इससे आप देख सकते हैं KD की वैल्यू और ज्यादा बढ़ रही है. तो नाउ अब हम इस इक्वेशन में KD की वैल्यू एट 30 डिग्री के करस्पॉन्डिंग पुट करेंगे, राइट. तो नाउ व्हेन वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन सो जो हमारी L की वैल्यू आएगी दैट वुड कम एज 131.3 मिलीग्राम पर लीटर. जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आप लोग सब इसे कैल्सी में सॉल्व करिए, तो व्हेन वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन द वैल्यू ऑफ L विल कम एज 131.3 मिलीग्राम पर लीटर. इट मींस उस सीवेज सैंपल में टोटल जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है इनिशियली बिफोर डिकम्पोजिशन उसका अमाउंट है 131.3 मिलीग्राम पर लीटर. अब हमारे पास ये डेटा है तो अब हम इसे नेक्स्ट हमें जो निकालना है उसमें पुट करेंगे. तो ऑलवेज रिमेंबर दैट इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको मेजरली L कैलकुलेट करना होता है पहले, बिकॉज L जो है कांस्टेंट क्वांटिटी है, वो हर टेम्परेचर पे सेम रहेगी. वेदर आपने टेस्ट किसी भी टेम्परेचर पे किया है दैट वुड बी सेम, राइट. नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट Y5 मीन्स BOD5 एट 20 डिग्री सेल्सियस, राइट. तो अगेन Y5 का आपका फॉर्मूला क्या होता है, Y5 इक्वल टू L1 माइनस 10 टू द पावर माइनस KD इंटू T. नाउ अब ये Y5 आप निकाल रहे हैं, आप कंफ्यूज मत होइए कि BOD5 की वैल्यू में 110 गिवन है, दैट इज फॉर 30 डिग्री सेल्सियस. नाउ वो पूछ रहा है 20 डिग्री सेल्सियस. तो हम अगेन Y5 निकालेंगे. अब L की वैल्यू एज आई टोल्ड यू सीवेज सैंपल के लिए, एक सीवेज सैंपल के लिए वो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी चाहे आप टेस्ट किसी भी टेम्परेचर पे करो, बिकॉज इट इज ऑब्वियस कि किसी सीवेज सैंपल में कितना ऑर्गेनिक मैटर इनिशियली प्रेजेंट है वो सेम ही रहेगा. तो यहाँ पे L की वैल्यू, अब आपको समझ आया कि हमने L क्यों निकाला. हमने L इसलिए निकाला सो दैट हम इसमें पुट कर सके, राइट, जब हमें BOD5 निकाले 20 डिग्री सेल्सियस पे. तो फॉर्मूले में हम पुट करेंगे 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस. नाउ रिमेंबर अब जो KD पुट होगा वो आप गलती से 0.158 मत रख लेना, क्योंकि अब हम 20 डिग्री के लिए निकाल रहे हैं. तो KD की वैल्यू होगी 0.1 जो कि 20 डिग्री पे, और T की वैल्यू ऑब्वियसली 5 होगी क्योंकि 5 डेज BOD हम कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट. तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे जो हमारी BOD5 आएगी दैट वुड बी अराउंड 89.8 milligram per liter. So this is our answer for Y5 at 20 डिग्री सेल्सियस, राइट. तो इस तरह हम निकालते हैं BOD, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे. तो इस तरह हम इसे अप्लाई करके BOD किसी भी दिन की किसी भी टेम्परेचर पे निकाल सकते हैं, राइट. अब मैंने आपको याद है प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हायर द वैल्यू ऑफ KD, ठीक है, हायर द वैल्यू ऑफ KD हायर विल बी द BOD. और KD की वैल्यू कब बड़ी होती है, हायर द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर. जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट की वैल्यू होगी.
जितना ज्यादा डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट की वैल्यू है, इसका मतलब रिएक्शन जो रेट है जो रिएक्शन का बेसिकली ऑक्सीजन के कंजप्शन का और डिकम्पोजिशन का, वो उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। अगर रिएक्शन का रेट जितना बढ़ रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन उतनी ज्यादा रेट से यूज हो रही है, इसका मतलब जो ऑक्सीजन डिमांड है वो उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो अब आप इसे देखिए, प्रूफ भी हो गया है यहाँ पे कि जो 30 डिग्री पे 5 डेज बीओडी थी वो 110 मिलीग्राम पर लीटर थी, वेर एज सेम सीवेज सैंपल क्ले जो 5 डेज बीओडी 20 डिग्री सेल्सियस पे है वो है 89.8। तो आप इस एग्जाम्पल के थ्रू भी देख सकते हैं कि ये हमने प्रूफ कर दिया है। तो इसका मतलब यही है कि जितनी ज्यादा रिएक्शन रेट होगी, रिएक्शन की रेट होगी, उतने ही तेजी से ऑक्सीजन का कंजप्शन होगा। और बीओडी क्या होता है हमारा, ऑक्सीजन कंजप्शन ही होता है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन बीओडी उतनी ही ज्यादा होगी आपकी अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, राइट। सो होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर टू यू। सो लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन. So now let's solve another question. So the question is like this: the BOD5 of a wastewater is 150 milligram per liter at 20 degrees Celsius. The K value is known to be 0.23 per day. What would be BOD8 if the test was run at 15 degrees Celsius? So let's note down what is given. So we have been given BOD5 is being given BOD5 at 20 degrees Celsius, that is being given as 150 milligram per liter. Then the value of K is given as 0.23 per day, and it is being asked to calculate the BOD8 at a temperature of 15 degrees Celsius. So you can note down and you can see also that what is the difference between this question and the previous question. So in the previous question also the BOD5 of sample was given at 30 degrees Celsius, and he was asking you to calculate again the BOD5 at some another temperature, that is at 20 degrees Celsius. But in this question ये तो given ही है कि BOD5 given है 20 डिग्री पे, और उसने जो पूछी है वो पिछले क्वेश्चन में BOD5 ही पूछी थी, सिर्फ टेम्परेचर चेंज किया था। बट इन दिस क्वेश्चन वी हैव अगेन वन मोर न्यू कॉन्सेप्ट कि BOD8 पूछी है, मतलब दूसरे दिन की BOD पूछी है, एंड ऑल्सो द टेम्परेचर जो है वो भी चेंज किया गया है। तो इसमें एक और आपका कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। तो ये गिवन है, और इस क्वेश्चन में आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है, जो गिवन है दिस इज K, सो यू हैव टू रिमेंबर ये KD नहीं गिवन है, दिस इज K विच इज ऑन बेस E। के जब भी लिखाएगा स्मॉल के आपका, या वो आगे मेंशन कर देगा बेस ई, तो इसका मतलब आपका बेस ई पे है। तो अगर आप फॉर्मूले में केडी के बदले इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, सो योर आंसर वुड बी रॉन्ग, बिकॉज एज आई हैव टोल्ड यू दैट always in the formula you have to put the value of kd which is based on log 10. So if in the question if it is being mentioned that the value of k के बदले आपका kd नहीं गिवन है, k लिखा है, इसका मतलब ये आपका रिएक्शन रेट कांस्टेंट है जो कि log e पे है। तो वी नीड टू कन्वर्ट दिस k इनटू फर्स्ट बेस 10। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन में जो करेंगे KD निकाल लेंगे, राइट। KD, और ये KD कितने पे है, ऑब्वियसली 20 डिग्री सेल्सियस पे है, क्योंकि इसने क्या लिखा है, BOD ऑफ वेस्ट वाटर सैंपल इज 150 मिलीग्राम एट 20 डिग्री सेल्सियस। द K वैल्यू यानी ये इसी टाइम पे K वैल्यू इतनी थी, तो इसका मतलब जो KD है 20 डिग्री सेल्सियस, log 10 पे हम कैसे निकालते हैं, 0.434 इंटू K कर देते हैं, राइट। हमने पढ़ा था कि KD इक्वल्स टू, इफ यू रिमेंबर, KD इक्वल्स टू 0.434 K, राइट। तो क्या हो जाएगा 0.434 K, हम जब इसे पुट करेंगे तो दिस विल कम एज 0.434 इंटू 0.23, सो दिस इज कमिंग एज अराउंड 0.0998। तो इसकी हम ऑलमोस्ट एक इक्वल वैल्यू रख देंगे 0.1 पर डे। तो आप देख सकते हैं KD की वैल्यू वैसे ऑलमोस्ट 0.1 पर डे होती है जनरली, ठीक है। तो KD आ गया हमारा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट था कि आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे K गिवन है, ये K आपका KD नहीं है, दिस इज K रिएक्शन रेट कांस्टेंट, और KD हमारा क्योंकि डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे, राइट। वी हैव टू ऑलवेज पुट द वैल्यू ऑफ KD, राइट। तो अब हमने सबसे पहले KD निकाल लिया। नाउ हमें गिवन है BOD5 एट 20 डिग्री सेल्सियस, और आपको निकालनी है BOD8। तो अगेन जब आप BOD के फॉर्मूले में L को पुट करना चाहेंगे तो सबसे पहले आपको L निकालना होगा, राइट, एज आई हैव टोल्ड यू। तो सबसे पहले इस इक्वेशन में y5 इक्वल्स टू L इंटू 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस KD इंटू T। देखो यही इक्वेशन आपके L निकालने के भी काम आएगी, और यही इक्वेशन आपको जो अगले दूसरे दिन में BOD पूछी है या दूसरे टेम्परेचर में BOD पूछी है उसको कैलकुलेट करने के काम आएगी, राइट। तो पहले हम इस इक्वेशन में y5 को पुट करेंगे। y5 जो हमें गिवन है 20 डिग्री पे, दैट इज
150 इक्वल्स टू L इंटू 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस, अब देखो ध्यान रखना है KD क्योंकि 20 डिग्री का ही हम रख रहे हैं तो KD हमारा आ जाएगा 0.1 इंटू T हमारा होगा कितने दिन की BOD गिवन है 5 डेज की, सो इंटू 5। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, यू ऑल हैव टू सॉल्व दिस इन एट योर होम, तो अब जो हमारी L की वैल्यू आ रही है दिस इज कमिंग एज 219.4 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, तो ये हमारी L की वैल्यू आ गई है 219.4 मिलीग्राम पर लीटर और ये कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, राइट। तो अब हमने L निकाल लिया। नाउ अब हमें निकालनी है BOD 8 एट 15 डिग्री सेल्सियस। तो यानी आप लिखेंगे Y8, राइट, BOD 8 would be written as Y8 equals to L into 1 minus 10 to the power माइनस KD इंटू T। अब यहाँ पे आपको पता है कि L क्या है, L की वैल्यू आप पुट करेंगे जो आपने अभी कैलकुलेट की 219.4, राइट, इंटू 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस, नाउ अगेन KD, अगर आपको BOD 8 एट 20 डिग्री सेल्सियस ही पूछा रहता तो आप KD सीधे 0.1 रख देते, लेकिन क्योंकि KD एट आपका 15 डिग्री के टेम्परेचर पे टेस्ट कंडक्ट हुआ है तो नाउ वी विल कैलकुलेट KD एट 15 डिग्री। तो KD एट 15 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, KD एट 20 डिग्री दैट इज 0.1 इंटू 1.047 टू द पावर T माइनस 20, राइट। तो यहाँ पे T की वैल्यू आप क्या पुट कर लेंगे 15, क्योंकि हमें 15 पे डिटरमाइन करना है। सो व्हेन यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन तो KD की जो वैल्यू आएगी 15 डिग्री पे दैट विल बी 0.079। तो अब हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे 0.079 इंटू T। नाउ अगेन रिमेंबर पिछले क्वेश्चन में आपने T 5 रखा था क्योंकि BOD 5 पूछी थी, बट इस क्वेश्चन में BOD 8 पूछिए तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे इसे आप 8 रखना होगा। कई बच्चे एग्जाम्स में गलती कर देते हैं आप जल्दबाजी के कारण कि आप फटाफट BOD 5 ही आपके ध्यान में रहता है और आप इसे 5 पुट कर देते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि कितने दिन की BOD पूछिए और कितने टेम्परेचर पे पूछिए, तो आप उसी अकॉर्डिंगली KD और T की वैल्यू को पुट करते हैं, राइट। सो व्हेन वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन तो जो हमें 8 दिन की BODs मिलेगी 8 डे की, दैट वुड बी अराउंड 168.2 मिलीग्राम पर लीटर, राइट। तो ये आ गई हमारी 8 डेज BOD। तो इस तरीके से आप BOD एट एनी अदर टेम्परेचर एंड एट फॉर अ पर्टिकुलर डे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। आपको ये ध्यान रखना है, आपको मेजरली L कैलकुलेट करना होगा जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, एंड देन यू हैव टू पुट दैट L इन द पर्टिकुलर इक्वेशन इन दैट इक्वेशन। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि इस क्वेश्चन में था कि वैल्यू KD की गिवन नहीं थी, K की गिवन थी, सो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू KD, दैट वुड द फॉर्मूला वुड बी KD इक्वल्स टू 0.434 K, राइट। और बाकी आपको कितने दिन की BOD और कितने टेम्परेचर पे पूछिए आपको ध्यान रखना है। आई होप बोथ द न्यूमेरिकल्स आर क्लियर टू यू। दिस मच इज सफिशिएंट फॉर टुडेज lecture. We will solve some more numericals in next lecture, right? So if there is any doubt, you may ask me. Thank you.